الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اسٹیج پر تشریف فرما میرے رہنما رہبر محمد شکیل فاروقی صاحب، میرے عزیز دوست مجاز بھورے چیئرمین رفیدین فقی بوائز ہائی اسکول دلارنور کریم پٹیل صاحب، اور میرے بہت ہی بزرگ اور میرے بڑے بھائی کی طرح جناب فقی پٹیل صاحب، عزیز طلبہ اور دیگر اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ترغیبی وہ تحریکی جسے ہم موٹیویشنل لیکچر کہتے ہیں، اس کی شروعات اس احساس سے کرنا چاہوں گا بچوں کہ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. آج سے بھی تقریباً 90 سال پہلے 1938 میں ایک ملک ہے ہنگری، وہاں کے باشندوں کو ہنگرین کہا جاتا ہے. ہنگری ملک کے فوج کا ایک سپاہی جس کا نام تھا کیرولن ٹکسوس، یہ بہت مشہور اپنے وقت کا پسٹل نشانے باز تھا. جو پستول ہوتی ہے اس کو انگلش میں پسٹل کہتے ہیں، چھوٹی بندوق ہوتی نا، تو اس کا بہت مشہور نشانے باز تھا. سنو بچوں، 1938 کی یہ بات ہے اور اپنے ملک میں ہونے والے تمام مقابلوں میں اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا، اس نے اول مقام حاصل کیا. 1940 میں اولمپک ہونے والے تھے اور وہ اولمپک کی تیاری کر رہا تھا. پورا ملک جانتا تھا کہ یہ جو کیرولی ہے یہی گولڈ میڈل جیت کر لائے گا ہمارے ملک کے لیے، اور اس کو اپنے آپ پر بھی بہت بھروسہ تھا. چونکہ وہ فوجی تھا، ایسے ہی ایک فوجی کیمپ میں جو تقریباً نومبر 1938 میں ہو رہا تھا، ایک بہت ہی ناگزیر اور ناخوشگوار حادثہ ہوا کہ کیرولی کے ہاتھ میں ہی جو ہینڈ گرینائڈ ہوتا ہے، جسے ہاتھ سے بم پھینکتے ہیں، اسے ہینڈ گرینائڈ کہتے ہیں، تو وہ ہینڈ گرینائڈ کیرولی کے جو رائٹ ہینڈ تھا اسی میں پھٹ گیا اور کیرولی کا جو سپنا تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ بہت بری طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کی جو خواہش تھی اور اس کا بہت اہم خواب تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل، اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ پوری طرح سے بیکار ہو گیا، وہ پوری طرح سے معذور کہلانے لگا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے افسوس. ایک شام ہاسپٹل میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا رائٹ ہینڈ اگر خراب ہوا ہے، معذور ہو گیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ خدا نے مجھے لیفٹ ہینڈ دے دیا. چونکہ 1 مہینہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے لیفٹ ہینڈ سے نشانے بازی کی پریکٹس کی. پورے 1 مہینے کے بعد جو ہے اس نے نشانے بازی کی پریکٹس کی، مسلسل کرتا رہا اور 1 سال گزرنے کے بعد 1939 میں واپس ہنگری ملک میں جو مقابلے ہوتے ہیں کھیل کود کے، نیشنل چیمپئن شپ، وہ منعقد ہوئی. پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اسی اسٹیڈیم میں جب پسٹل ٹارگیٹنگ کا یا پسٹل کے ذریعے نشانہ لگانے کا جب مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ کیرولی بھی آیا ہے. جو نئے ایتھلیٹس تھے، جو کھلاڑی تھے، وہ بہت خوش ہو گئے اور کیرولی سے کہا کہ بہت اچھا لگا ہم کو آپ کو دیکھ کر، آپ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے ہو. تو کیرولی نے مسکرا کر کہا نہیں، میں حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں خود آپ لوگوں سے کمپیٹ کرنے آیا ہوں، میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے. چنانچہ وہ مقابلے میں کیرولی نے اپنے اونلی ہینڈ جو اس کا لیفٹ ہینڈ تھا اس میں
से हिस्सा लिया और कैरोली ही उस नेशनल चैंपियन का चैंपियन बना। तो बच्चों, ये होती है मेहनत। एक हाथ अगर जाए हुआ तो क्या, मेरे पास दूसरा हाथ तो है। आगे सुनिए बच्चों, ये कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं हुई है। आगे उसकी नजर थी 1940 में होने वाले ओलंपिक, लेकिन एक मतलब फिर से किस्मत ने कैरोली का साथ नहीं दिया। 1939 में ही राजस्थान ने आपको बताया होगा, 1939 में ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो, दूसरी जंग अजीम या आलमी जंग शुरू हो गई। चुनांचे 1940 के ओलंपिक रद्द कर दिए। फिर उसने मेहनत को जारी रखा कि चलो ठीक है, 40 में नहीं 44 में तो ओलंपिक हो गए। 4 साल मुसलसल मेहनत करता रहा, 44 आ गया, लेकिन जंग अब भी जारी थी। चुनांचे 44 का भी ओलंपिक रद्द कर दिया। अब कैरोली बुरी तरह से एक मतलब फिर से डिप्रेशन में। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि 38 में उसकी उम्र जो है वो 28 साल थी। अब यानी उसे 48 में 4 साल के बाद ओलंपिक आता है, 48 में हिस्सा लेना होगा। 48 में उसकी उम्र 38 हो जाएगी। और जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की सलाहियतें कम होती जाती है, मगर फिर भी कैरोली ने हिम्मत नहीं हारी। 1948 में ओलंपिक हुए। कैरोली को देखने के लिए एक ऐसा आदमी जिसका एक हाथ नहीं है और एक लेफ्ट हैंड ही उसके पास पिस्टल का निशाना या पिस्टल से निशाना लगाने के लिए आया है। ओलंपिक हुए, मुकाबले हुए, जवान जवान मुकाबला करने वाले, कंपीट करने वाले उसके सामने थे, लेकिन सबको पछाड़ कर कैरोली ने गोल्ड मेडल हासिल किया। क्या हासिल किया? गोल्ड मेडल। कैरोली यही नहीं रुका बच्चों, यही नहीं रुका। 1952 में ओलंपिक हुए और 1952 के भी ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया और 1952 में भी उसने फिर से गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ साथ उसने ओलंपिक की तारीख में ये एक नया बाब लिखा, पिस्टल में मुसलसल 2 मरतबा गोल्ड मेडल किसी भी एथलीट ने जीता नहीं। तो कैरोली पहला एथलीट बना जिसने मुसलसल 2 मरतबा गोल्ड मेडल पिस्टल के उस मुकाबले में हासिल किया। तो बच्चों, बताने का मकसद ये है कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। हमारे सर हमेशा कहते हैं कि इवन वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सर हमेशा कहते थे कि जो आप उसको देखेंगे इम्पॉसिबल जैसा लिखा होता है, उसको तोड़ देंगे तो उसमें लिखा होता है आई एम पॉसिबल। समझे? तो इम्पॉसिबल बच्चों दुनिया में कुछ नहीं है। अपनी पॉसिबिलिटी तलाश करो, अपने आप को तलाश करो कि क्या हूं मैं, कौन हूं मैं। ऐसी ऐसी दुनिया में मिसालें मौजूद है जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर इंसान दंग रह जाता है। इंसान चांद पर कभी नहीं पहुंच सकता, ये इम्पॉसिबल है। 1955 में डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने कहा था कि इंसान चांद पर कभी पहुंच नहीं सकता है। कब कहा? 1955 में। क्योंकि इंसान की जो साइंस है या इंसान का जो इल्म है वो बस जमीन के हद तक महदूद है। जमीन के आगे चांद, सितारों का, सूरज का इल्म इंसान को नहीं पहुंच सकता है, नहीं मिल सकता है। 1955 से लेकर 1969 में एक बहरा आदमी या एक ऐसा आदमी, आम आदमी, एक बस्ता लेकर पहुंच गया चांद की सरजमीन पर, जिसे हम नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं। तो जो इतना बड़ा दावा था डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट का, वो दावा कहां चला गया? इसलिए कहा जाता है बच्चों कि इम्पॉसिबल जैसा लफ्ज कोई नहीं होता है, हर चीज दुनिया में पॉसिबल है। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूक में सबसे अशरफ, सबसे बड़ी। यही बात कही थी डॉक्टर लॉर्ड कैल्विन ने, जो कि एक साइंसदान थे। कहा कि इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता है, इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता है। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने कहा। राइट ब्रदर ने ली डी फॉरेस्ट को गलत साबित कर दिया। 12 साल तक मेहनत की। कितने साल तक? 12 साल तक। राइट ब्रदर 2 भाई थे, दोनों ने मेहनत की, कई मरतबा तजुर्बात किए और साइकिल के स्पेयर पार्ट से हवाई जहाज बना। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो इन्वेंट कहलाता है हवाई जहाज,
इंसान हजारों किलोमीटर का सफर चंद घंटों में तय करता है। तो ये थी 12 साल की महिला। तीसरी मिसाल जो बच्चों, वो थी विल्मा रुडोल्फ की, एक ऐसी बच्ची जिसको डॉक्टर ने कहा था यू विल नेवर वॉक अगेन। माय डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन, तुम कभी चल नहीं सकती। वो लड़की रोते रोते आई अपनी माँ के पास कि माँ, डॉक्टर ने तो ये कहा कि मैं कभी चल नहीं सकती। माँ ने कहा कि नहीं, तुम चलोगी। किसने कहा? माँ ने कहा कि तुम चलोगी। और वो लड़की 1955 या 56 के ओलंपिक में 3 मरतबा गोल्ड मेडल जीती। उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। ये सब कहानियां नहीं है बच्चों, ये हकीकतें हैं, ये असल वाकयात है दुनिया के। ये चीजें हैं बच्चों कि दुनिया में कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये तमाम वाकयात बताने का मकसद ये है बच्चों कि ये जो जितने भी शख्सियात गुजरे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, क्या ये कामयाबी इनको ऐसे ही मिली? कभी नहीं। इन्होंने मेहनत की। पहले वाकये को देखो, हाथ टूटने के बाद 1 साल तक उसने मेहनत की। दूसरे वाकये को देखो कि इंसान जो पहुंचा खला में, चांद पर जो पहुंचा, उसमें भी मेहनत शामिल थी। इसी तरह से राइट ब्रदर ने 12 साल तक मेहनत की। विल्मा रुडोल्फ ने कई सालों तक मेहनत की होगी कि पोलियो से उसे जो है निकलना है और रनिंग का मुकाबले में हिस्सा लेना है और गोल्ड मेडल जीतना। तो मेहनत बड़ी शर्त है, सबसे पहली शर्त है कामयाबी की मेहनत। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो टारगेट सेट करने के बाद उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एक चीज और कि ये जितने भी है, एक का हाथ नहीं है, एक जो है क्या कहते हैं अपने पैरों से माजूर है, अपाहिज है, उनको देखो और अपने आप को देखो बच्चों। हमें तो अल्लाह ताला ने अच्छा खासा बनाया है, 2 हाथ 2 पैर, आंखें कान, हर चीज हमारी सही है। इवन यहाँ पर मुझे तो चश्मे वाले भी बहुत कम दिखाई दे रहे है कि नहीं? हमारे पास हर चीज अल्लाह ताला की नेमत, हर नेमत मौजूद है, तो हम क्यों भागे? वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती है। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत बहुत जरूरी है। बगैर मेहनत के कोई भी चीज हासिल नहीं होती। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो अपने रब से कितना ही करीब हो, उसको मेहनत करना जरूरी होती है। बगैर मेहनत के किसी को भी कामयाबी नहीं होती। आप मुझे बताओ, एक जवाब दो कोई, अल्लाह के नजदीक दुनिया में सबसे महबूब शख्सियत कौन है? बोलो बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नजदीक जितनी भी मखलूकात है, जितने भी चरिंद परिंद जानवर, उसमें सबसे महबूब, अल्लाह को जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वो है अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकया याद करो बच्चों, सुलह हुदैबिया का। उस वाकये से पहले ये बताता चलूं कि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ मांगी वो दुआ कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी कि हजरत उमर को, या हजरत जो है क्या नाम उनका, अबू जहल को मुसलमान कर दिया था, मतलब इस्लाम के लिए फेर दे। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को मुसलमान कर दिया। हर दुआ कबूल होती। सुलह हुदैबिया का मौका है, चारों तरफ से जो है इसको मदीना को काफिरों घेर रखा है। अल्लाह के रसूल को आपने पहले सबक में पढ़ा, हजरत सलमान फारसी, अल्लाह के रसूल को मशवरा दिया हजरत सलमान फारसी ने कि खंदक खोदिए, फारस में हम खंदक खोदते हैं जिससे दुश्मन जो है शहर से पीछे चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने मेहनत वो मशवरे को कबूल किया, खंदक खोदी, और खंदक खोदते खोदते अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे। इतनी सख्त मेहनत, एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, अपना कुर्ता उठाया और कहा कि अल्लाह के रसूल देखो मैं भूखा हूँ और भूख की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधे। अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता उठाया, अल्लाह के रसूल के पेट पर 2-2 पत्थर। इतनी सख्त मेहनत करके वो खंदक खोदी गई। खंदक जो है तैयार हुई, उसकी गहराई इतनी थी कि काफिर जो है पीछे हट गए। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, खतरनाक आंधियों को भेजा, तूफान आया, जिसकी वजह से काफिरों के खेमे उखड़ गए और काफिर जो है बगैर जंग लड़े भाग गए, फरार हो गए और मुसलमानों को फतेह। इस वाकये को अगर हम देखें तो ये साबित होता है कि अगर अल्लाह का नबी भी हो तो पहले उसे मेहनत करना पड़ती है।
پھر جا کر اسے کامیابی ملتی ہے. سمجھے؟ تو وہ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ ان سے بھی پہلے محنت کروا رہا ہے. تو بچوں محنت بہت ضروری ہے, محنت کرنی چاہیے. محنت کرتے کرتے جو ہے انسان کو ضرور حاصل ہوتی ہے. اب محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتاؤ. محنت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, سب سے پہلا طریقہ. آئیے ایک مرتبہ پھر سے اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کو اللہ نے حکم دیا کہ کعبہ بناؤ. کعبے کی تعمیر کا حکم دیا کہ نہیں؟ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا. کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا, ہے اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. تو محنت کر رہے ہیں اور اللہ پر توکل کر رہے ہیں کہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں, یہ گھر تعمیر کرنے کی محنت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس محنت میں میری جو نیت ہے وہ اخلاص والی نیت ہے, خلوص کی نیت ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور یہ جو میرا کام ہے یہ ضرور ضرور رنگ آئے گا. آج دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہوا وہ کعبہ آج سے میں سمجھتا ہوں کئی ہزار سال پرانی بات ہے, لیکن آج وہ دنیا کا سب سے مقدس گھر ہے. یہ بچوں محنت کا ثمرہ ہے. اگر آپ کی محنت میں اخلاص ہے, اگر آپ کی محنت صاف ہے, آپ کی نیت صاف ہے, تو آپ کو ضرور کامیاب ہوگی. اور محنت کے لیے جیسے کہ میں نے کہا اپنی نیت کو صاف رکھو کہ ہاں یہ جو میں محنت کر رہا ہوں کسی بھی کام میں, چاہے آپ پڑھائی کر رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو, اس میں محنت میں اخلاص اور نیت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. محنت مسلسل کرنا چاہیے, محنت میں ڈسپلین ہونا چاہیے. آپ نے کوئی چونٹی کو دیکھا ہے؟ چونٹی مونگا جسے کہتے ہیں, مونگی چونٹی کو دیکھا ہے؟ چونٹی کی یہ خصوصیت ہے بچوں کہ چونٹی کبھی بھی اپنے بل میں بغیر دانا لیے واپس نہیں آتی. سا دانا, اتنا چھوٹا سا دانا, لیکن اسے پتا ہے کہ یہ دانا میں جو لانے جا رہی ہوں یہی دانا جو ہے میرے لیے بارش کے وقت جب میں باہر نہیں نکل سکوں گی میرے لیے غذا ہوگا. اس لیے آپ دیکھو چونٹیوں کی جو لائن لگی ہوتی ہے ان کے ہر ایک کے پاس ایک دانا ہوتا ہے. ڈسپلین کی مثال دی جاتی ہے. اس کی مثال ہے ڈسپلین. ایک اگر چونٹی دانا نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ہر چونٹی کے پاس, ہر چونٹی کے منہ میں دانا ضرور ضرور. مائیکل فیلپس آسٹریلیا کا ایک سوئمر تھا, سوری آسٹریلیا کا, یو ایس کا, یونائیٹڈ اسٹیٹ کا ایک تیراک یا سوئمنگ کرنے والا. 2008 کے بیجنگ اولمپک میں اس نے 8 گولڈ میڈل حاصل کیے. کتنے گولڈ میڈل حاصل کیے؟ مائیکل فیلپس 8 گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد جب پریس کانفرنس بیٹھی, اپنے تمغوں کو اپنے جو ہے گلے میں پہنے, جب مائیکل فیلپس سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ مائیکل یو آر سو لکی یو وون 8 گولڈ میڈل ان سنگل اولمپک. مائیکل تم بہت لکی ہو کہ تم نے 8 گولڈ میڈل حاصل کیے ایک ہی اولمپک میں, یہ تو آج تک کسی نے نہیں کیا. مائیکل فیلپس مسکرایا اور کہا اچھا ٹھیک ہے کم. اس کو بلایا اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ جو 8 گولڈ میڈل جو مجھے ملے ہیں یہ 4 سال کی محنت ہے اور میں روز 8 گھنٹہ پانی میں تیرتا تھا روزانہ. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. اگر 1 گھنٹے تک اگر آپ پانی میں کھڑے رہو یا تیرنا شروع کرو تو آپ کے پیر جو ہے وہ اس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے, آپ کے پیر, آپ کی چمڑی نکل جاتی ہے. تو سوچو 4 سال تک مسلسل روزانہ 8 گھنٹے میں سوئمنگ کی پریکٹس کرتا, تب جا کر وہ بیجنگ اولمپک میں 8 گولڈ میڈل. تو بچوں محنت مسلسل کرنی چاہیے, کنٹینیویشن اس میں ہونا چاہیے. تیسری مثال دوں گا, وہ ہے بہت آسان مثال جو ہم سب کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے ہر کوئی روزانہ صبح برش کرتا ہے. ہم لوگ برش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے برش کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں؟ 1 منٹ, 2 منٹ, زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہم اپنے دانتوں کو گھستے ہیں. کتنے منٹ کا؟ 3 منٹ. اس سے زیادہ میں سمجھتا کوئی نہیں کرتا ہوں, سمجھے؟ لیکن وہ روزانہ کا عمل ہے. عمل کون سا ہے؟ روزانہ. اس لیے ہمارے جو دانت ہوتے ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں. کتنی محنت ہے؟ صرف 3 منٹ.
लेकिन वो रोजाना हो। तो बच्चों, आप लोगों का इम्तिहान करीब है, जैसे कि आपने मिनाज सर ने कहा, शब्बीर सर ने कहा, जैसे 90 डेज बचे हैं, 90 दिन बचे हैं, तो रोजाना पढ़ाई कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, रोजाना का टाइम टेबल बनाइए। मैं हमेशा अपने बच्चों को इस स्कूल में भी कई मतलब कहा उन्होंने कि उल्टा टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल आ चुका है आपका, 90 डेज बचे हैं, 10 सब्जेक्ट है आपके पास, एक सब्जेक्ट को कितने दिन आ गए? बोलो, 9 दिन आए ना? 10 सब्जेक्ट है ना आपके, मालूम है कि नहीं? 10 सब्जेक्ट है और 90 डेज बचे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 9 दिन आ गए। तो जो आखिरी पेपर होगा, आमतौर पर ज्योग्राफिया का होता है, तो वो उसके लिए अभी से 9 दिन शुरू करो, फिर उसके बाद उससे पहले वाले पेपर को और 9 दिन, फिर उससे पहले वाले पेपर को और 9 दिन, फिर जब आखिरी 9 दिन बचेंगे आपके पास, तो आपका उर्दू का पेपर आएगा। एकदम सिंपल है। इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और टाइम टेबल सेट करने के बाद आप इस तरह से मेहनत। और 9 दिन जो होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 5 घंटे आप जो है स्कूल में रहते हो, 2 घंटा खाने पीने में चला गया, 2 घंटा नमाज में चला गया, 5 और 4 9, फिर भी आपके पास पूरे 15 घंटे बचे। 5 घंटा सो लिए, 6 घंटा सो लिए, फिर भी आपके पास 8-9 घंटा, 2 घंटा खेल लिए, फिर भी आपके पास 7 घंटे बचे। तो बच्चों, वक्त बहुत है हमारे पास, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वक्त का इस्तेमाल करना जानो। एलन मस्क को जानते हैं कि नहीं? एलन मस्क को जानते हैं? दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी। देखो कारोबारी आदमी कैसे सोचता है। बर्थडे था उसका, गालिबन 45वां या 46वां बर्थडे था। उसको चाइना से ऑर्डर आया, उसकी कार की कंपनी है टेस्ला, मालूम है ना? टेस्ला कार की कंपनी है जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी। चाइना से ऑर्डर आया बड़े पैमाने पर कारों का ऑर्डर उसकी कंपनी। अब अकलमंद आदमी कैसे वक्त का इस्तेमाल करता? उसने कहा कि मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। अगर आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अपने एम्प्लॉय से कहा, तो आओ हम एक दिन ऐसा करते हैं कि 24 घंटा काम करते हैं। चुनाचे वो जो दिन था उसका बर्थडे का दिन, उसके एम्प्लॉय ने 24 घंटे काम किया और 24 घंटे काम करके बाहर का जो ऑर्डर था जो वक्त का इस्तेमाल करना जानो। अभी भी आपके पास बहुत वक्त है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे? इसलिए बच्चों, वक्त के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और इम्तिहान की तैयारी करो। आसान से मुश्किल की तरफ जाओ। पहले आसान सवालात को हल करो। कोई भी पेपर जो है, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होगा, किसी को साइंस में, किसी को इंग्लिश में, कोई भी पेपर जो है बहुत मुश्किल नहीं होता और ना ही बहुत आसान होता है। वो पेपर आपकी ज़हनियत के मुताबिक, आपकी इंटेलेक्चुअल के मुताबिक बनाया जाता है। उसमें आसान सवाल भी होते हैं, उसमें मुश्किल सवाल भी होते हैं। तो पहले आसान सवाल आप हल करो, फिर मुश्किल की तरफ जाओ। आसान से मुश्किल की तरफ जाना बहुत बेहतर होता है। हम डायरेक्टली मुश्किल की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए हमारा जहन जो है वो कबूल नहीं करता, हमारे अंदर फटीक पैदा होता है जो जहन की खत्म नहीं होता है। हम जो है किसी और की तरफ ध्यान जो है ये। इसलिए बच्चों, तरीका यही होना चाहिए कि पहले आसान सवाल आप हल करो और आसान सवाल को देखो। आसान सवाल आपने हल कर लिए तो आपको जो है मुश्किल सवाल भी आसान लिख कर जो जवाब आपने याद किया उसको एक मरतबा लिख लो, ये भी बहुत अच्छी आदत है। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने जवाबात को दोहराओ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी तरह से हमेशा याद रखो कि पढ़ाई करने से पहले अल्लाह ताला का नाम जरूर लेना चाहिए। शैतान से पनाह मांगनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हम समझते नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा है। हमारे रसूल ने कही हुई बातें हैं। कोई भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। हम इसको बहुत आसान समझते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वो काम जिसकी शुरुआत अल्लाह के नाम से हो, उस काम में पहले बरकत आ जाती है। इसलिए बच्चों, ये छोटी छोटी चीजों को भी मद्देनजर रखो। और
ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو، اچھی نیت کے ساتھ۔ ایک قول ہے کہ دنیا کی سب سے امیر جگہ جہاں آپ کو دنیا کی سبھی امیر چیزیں یا امیر لوگ ملیں گے وہ قبرستان کیا ہے؟ قبرستان، جہاں آپ کو سبھی امیدیں اور خواب ملیں گے جو کبھی پورے نہیں ہوئے، وہ کتابیں ملیں گی جو کبھی لکھی نہیں گئی، وہ گیت ملیں گے جو کبھی گائے نہیں گئے، وہ ایکسپیریمنٹ ملیں گے جو کبھی کرے نہیں گئے، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہ شخص اپنا پہلا قدم بڑھانے سے ڈر گیا۔ اپنا پہلا قدم بڑھاؤ بچوں، شروعات کرو۔ جب آپ پہلا قدم رکھتے ہو تو آپ کی آدھی منزل جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے مکمل۔ تو قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی کوئی چیز مکمل نہیں۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں غالباً 67,000 سے لے کر 74,000 بچے روز پیدا ہوتے ہیں، اور 26,600 سے لے کر 26,800 لوگ روز مرتے ہیں۔ کوئی کسی کو پوچھتا ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی آیا کوئی گیا۔ یاد اسے رکھا جاتا ہے جو کچھ کام کر کے جاتا ہے، یاد اسے رکھا جاتا ہے جو کچھ کام کر کے جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ٹاپ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے ہی کچھ بچے ہیں جو بتاتا ہوں، ایسے ایسے بچے اس اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں پہچانتے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نہیں پہچانتے۔ یہ 2011 میں ایک لڑکا جس کا نام تھا علی شیخ، یہ لڑکے نے اس اسکول میں ٹاپ کیا تھا 2011 میں، آپ کو پہلا سال، اور آج یہ مین کائنڈ کر کے کمپنی ہے جو ہندوستان کی دوسرے نمبر کی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، دوائی بنانے والی کمپنی۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ سن فارما ہے اور دوسرے نمبر پر ہے مین کائنڈ۔ تو مین کائنڈ میں بہت بڑی پوسٹ پر ہے، اور آج اس کی سیلری تقریباً 1 لاکھ تک پہنچی۔ علی شیخ ابھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے دیکھو اس کو جو ہے پرفارمنس پر گولڈ میڈل ملا ہے، اصلی کا گولڈ میڈل، اصلی کا گولڈ میڈل ملا۔ ہر سال کمپنی کے ذریعے 10 سے 15 دن کا فورن ٹرپ دیا جاتا ہے، جہاں گھر سے لے کر گھر سے گاڑی لینے آتی ہے، ایئرپورٹ تک چھوڑتی ہے، ایئرپورٹ پر گاڑی لینے جاتی ہے، کھانا پینا رہنا وتھ فیملی یہ دیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے علی شیخ، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنے ہی اسکول سے پڑھا ہوا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ، یہ لڑکا ہے، اس لڑکی کی ایک کہانی ہے، آپ لوگوں کو اطلاع تھا شاید، جو جمعہ کی دن میں لیکچر لینے آیا تو بچوں کو بتایا تھا میں، بچے تھے رفیق دن میں سے۔ اس کا نام ہے امان انصاری یا خان، اور غالباً اس نے 2014 یا 15 میں اس اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت میرے پاس سیمسنگ کا فون ہوتا تھا، اور سیمسنگ کے فون میں S3 یا S2 ایسا کر کے کوئی فون تھا، تو ایسا فیچر تھا کہ سامنے رکھو تو لائٹ آن ہوتی تھی، جیسے ابھی سامنے رکھے تو ہمارا موبائل ان لاک ہو جاتا ہے نا، ویسے وہ اسٹارٹنگ کا دور تھا، تو جیسے سامنے رکھے تو لائٹ آن ہوتی تھی۔ تو میں نے فون لایا تھا، کلاس میں ایسے آگے رکھا، اس لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ اس میں کیا خاص ہے سر؟ میں نے کہا کہ اس میں کچھ خاص تو نہیں ہے جیسا رہتا ہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھو تو یہ فون کی لائٹ آٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا فون موبائل۔ تو وہ بات اس نے پکڑ لی اور اس نے سوچا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر کروں، چنانچہ آج وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اور ایک بہت بڑی کمپنی میں جو گیمنگ کمپنی ہے، جو آپ لوگ گیم کھیلتے ہیں نا، اس کے وہ بھی سافٹ ویئر ہی ہے، تو گیمنگ کمپنی میں یہ مثال کسی اور کی نہیں دینا چاہتا، یہ اپنے ہی بچے ہیں، آپ کے ہی محلے کے ہیں، اسی اسکول سے پڑھے ہیں، جہاں آپ بیٹھ رہے ہو وہیں پر وہ بھی بیٹھتے تھے۔ اور دوسری بات اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس نے آپ اپنا لوہا اس قدر منوایا ہے کہ اس نے کم سے کم 4 کمپنیوں کو چھوڑ دیا ہے، جہاں اس کو اچھی سیلری ملتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور میں خود اس کو نہیں پہچانتا تھا، آپ بھی نہیں پہچانتے ہوں گے، مجاز سر بھی نہیں پہچانتے ہوں گے۔
किसी प्रोग्राम में मैं गया था तो पीछे से आया और उससे हाथ मिलाया और अपना तारुफ किया। तो ऐसे गुमनाम बच्चे भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप टॉप करेंगे तभी कामयाब होंगे, ये जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इस लड़के को भी शायद 2-3 साल पहले आपके स्कूल में मिलाया गया, जुनैद शेख, जुनैद खान। इसने मुझसे मेरे स्कूल में आया हो और मुझसे कहा कि सर आपने कहा था, मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप लोगों को भी देकर जाता हूँ, कि आज रात में सोने से पहले जब आपकी आंख बंद हो जाती है 5 मिनट सिर्फ अपने बारे में सोचना और करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना सोचना, मेरे अंदर क्या सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है और मैं क्या कर सकता हूँ, या आपकी दिलचस्पी किसमें है, बस वो करना, एक कागज पे लिख के रख देना और अगले दिन से उसके लिए कोशिश करना, पढ़ाई के जरिए कोशिश करना, कुछ और के जरिए कोशिश करना। तो ये एक्सरसाइज मैंने दी क्लास में, इसने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। उसने कहा कि सर आपने जब कहा था, मैंने कहा मैं सोच रहा मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन मैं क्रिकेटर तो नहीं बना, लेकिन मैंने अपने आप को फिट रखकर आज मैं जो है मरीन कैटरिंग में काम कर रहा हूँ। मुल्कों घूमता है, कई ममालिक का दौरा करता है, इसके व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ तो कभी साउथ अफ्रीका में है, तो कभी कहाँ है, तो कभी कहाँ है, पूरी दुनिया ये तकरीबन घूम चुका है। अच्छा एक बात और, इसने भी बहुत मेहनत की, जब ये 10वीं 12वीं पास हो गया तो ये बहुत मोटा था, इसने बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली और मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप को फिट किया, क्योंकि आप जहाज में जब जाते हो तो आपका ऐसे ही नहीं लिया जाता है चलो आ जाओ अंदर, आप वैसे फिट होना चाहिए, आपकी सेहत वैसी होनी चाहिए, तो इसने अपने आप को जो है बनवाया। चौथा ये जैद खान है, इसको तो मैं समझता हूँ कोई नहीं पहचानता, ये जैद खान है बच्चों। इसने मुझे फोटो भेजा था और ये जो फोटो है देखो, माय नेम इज जैद खान, आई एम अ राइटर, पोएट एंड स्टैंड अप कॉमेडियन। एक एवरेज बच्चा ये जो जुनैद है उसी के बैच का है, और मैं समझता हूँ इसका परसेंटेज मुश्किल से 50-60 तक होगा, लेकिन आज ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसके दुबई में शो होते हैं और मुनव्वर फारूकी और जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन आप देखते हो उसके साथ इसके फोटो में आपने व्हाट्सएप स्टेटस भी देखा होगा, बात भी होती रहती है इससे। तो कहने का मकसद ये बच्चों कि हम भी तो इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी सलाहियतें हैं, तो हम क्यों उन सलाहियतों को ना अपनाएं और उन सलाहियतों के जरिए अपनी तरक्की क्यों करें। इसलिए बच्चों कोई और मिसाल कहीं और जाने की देखने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों की तरह एवरेज बच्चे थे, उसमें अच्छे बच्चे भी थे, ये तो मैं जिनको जानता हूँ उनकी मिसाल है। मैं समझता हूँ इस स्कूल से हर साल 10 बच्चे ऐसे निकलते होंगे जो कामयाबी की एकदम ऊंची या बुलंदतरीन सतह पर पहुंचते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग भी मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत के जरिए बहुत कुछ हासिल होगा। एक बात याद रखो, आपके माँ बाप ने आपको बहुत लाड प्यार से पाला है, किसी के पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके माँ बाप ही आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने कानों को इतना मजबूत रखो कि सपनों को सितारों की तरह सजा सको। अपने कानों को इतना मजबूत रखो कि सपनों को सितारों की तरह सजा सको। जब आप स्कूल से निकलते हो ना, भले आपके माँ बाप जो है आपको दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन उनके जहन में ये ख्याल होगा कि ये जो बच्चा अभी जा रहा है ये मेरी उम्मीद है, मेरी आस है। बहुत से बच्चे की माएँ उनके कांधों पर बस्ता रखती होगी, बैग रखती होगी, तो जब वो बैग रखती ना तो उसकी आंख में झांक कर देखो, उसकी उम्मीद को देखो। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज किसी की उम्मीद का तोड़ना है, सबसे ज्यादा हार्टफुल है। सबसे ज्यादा किसी को अगर तकलीफ होती है तो किसी की उम्मीद के टूटने को। तो जब आपकी अम्मी आपको बैग रखती है या कहती है बेटा वो बैग रखा है लेकर चला जा, बेटा वो चाय रखी है पी ले, तब उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में एक उम्मीद रहती है कि ये जो जा रहा है यही मेरे बुढ़ापे का सहारा, ये जो जा रहा है ये मेहनत करेगा और मुझे एक झोपड़ी से निकाल कर एक अच्छे फ्लैट में रखेगा। मैं जहां वहां काम कर रही हूँ, मेरा काम करना यही बंद कर रहा है। मेरे वालिद टाका चेकिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी उनकी मेहनत को बंद करना या उनकी मेहनत को कम करने की जिम्मेदारी से। इसलिए बच्चों अपने कांधों को बोझ होने के लिए इस्तेमाल मत करो, क्योंकि बोझ एक ना एक दिन उतर जाता है, बल्कि अपने कांधों पर सितारों को सजाओ ताकि आपके वालिदैन की जिंदगी भी अच्छी
10वीं जमात आप लोगों का टर्निंग पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूँ एक टर्निंग पॉइंट है जिंदगी में। आप 5वीं से यहाँ पर पढ़ रहे हो, कितने ऐसे होंगे जो 5वीं से लेकर 10वीं तक साथ में बैठे, लेकिन जब वो कागज का टुकड़ा हाथ में आता है, जो रिजल्ट जिसे कहते हैं वो कागज का टुकड़ा हाथ में आता है, वही हमारी किस्मत बदलता है और उसी से हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं। फिर वो कागज का टुकड़ा ये तय करता है कि हमें कहाँ जाना है। फिर ये नहीं देखा जाता कि मेरे बाजू में 5वीं से लेकर 10वीं तक जो बैठा था वो कहाँ जा रहा है, मैं वहां जाऊंगा। जाने से मुराद जूनियर कॉलेज की बात कर, अगर वो एडमिशन ले रहा है रईस में तो मैं भी रईस में जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो अपनी मंजिल तय करेगा, आपको अपनी मंजिल। तो वो जो कागज का टुकड़ा होता है ना, वहां से रिश्ते नाते दोस्त अहबाब सब दूर हो जाते हैं। सिर्फ आपके जो है करियर की आपको फिक्र होनी चाहिए वहां से। इसीलिए 10वीं जमात को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और 10वीं की कामयाबी जो होती है वो छोटी कामयाबी है बच्चों, और छोटी छोटी कामयाबियां ही आगे चलकर एक बड़ी कामयाबी है। क्या दुनिया में कोई भी आदमी डायरेक्टली कामयाब हुआ? नहीं। छोटी छोटी कामयाबी को जब यकजा किया जाता है तब ही जाकर वो कामयाबी बड़ी बनती है। अल्लाह के रसूल ने 13 साल तक मक्का में मेहनत की। कितने साल तक? 13 साल तक। मुट्ठी के जो लोग थे उसको इस्लाम को 13 साल तक मेहनत की। पहले अपने घर वालों को दावत दी, सबसे पहले अपनी बीवी को दावत दी, फिर अपने चचाजाद भाई हजरत अली को दावत दी, फिर अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को दावत दी। आहिस्ता आहिस्ता ये मिशन आगे बढ़ रहा है। तो कामयाबी जो हासिल होती है वो एक साथ नहीं होती है, कामयाबी स्टेप बाय स्टेप हासिल होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप कामयाबी में तसलसल रखना बहुत जरूरी है। अगर तसलसल नहीं रखेंगे तो वो कामयाबी नहीं होगी, वो तो आपका लक होगा, वो आपकी किस्मत होगी। वो तो आपकी सिर्फ किस्मत होगी। पाब्लो पिकासो जो था वो दुनिया का अजीम तरीन फनकार था, पेंटर। एक मरतबा यूएस में, इसका ताल्लुक फ्रांस से, यूएस ने एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अपनी तकरीर के खात्मे के बाद एक औरत उससे आई और कहा कि पाब्लो, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। और वो औरत पाब्लो को देखकर एकदम पागल हो गई। पाब्लो भी उससे मुतासिर हो गया उसके पागलपन को देखकर। उससे 2 मिनट बात की तो औरत दौड़ी दौड़ी गई और बाजू से एक पेन और एक कागज लेकर और कहा कि पाब्लो, मैं तुमसे मिली हूँ, इसका सबूत रहना चाहिए, तुम मेरे लिए कुछ स्केच कर दो, बना दो। और पाब्लो भी उससे मुतासिर हुआ था। उसने बस 30 सेकंड में, कितने 30 सेकंड में एक ऐसी आड़ी टेढ़ी लकीरें खींची और एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई और कहा कि लेडी, दिस इज द $1 मिलियन पेंटिंग। औरत, ये जो पेंटिंग है ये $1 मिलियन की है। अब वो लेडी जो है वो पेंटिंग को देखकर हंसने लगी कि ये क्या आड़ी टेढ़ी लकीरें हैं, क्या $1 मिलियन को मिलेंगे, लाखों डॉलर्स के मिलेंगे? चुनांचे वो उसको सबूत के तौर पर या यकीन के तौर पर वो किसी दुकान में लेकर चली गई। नीचे उसकी साइन थी पाब्लो पिकासो की साइन। जैसे ही दुकानदार ने कहा, देखा कि ये वाकई में पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, और उसने $10 लाख दिए उसको। कितने? $10 लाख। और लेडी बहुत खुश हो गई। अरे यार, उसने पेंटिंग जो है बेची नहीं। अगले दिन फिर पाब्लो का जो है लेक्चर था। लेक्चर के खात्मे के बाद फिर वो पाब्लो से मिली और कहा कि वाकई तुमने जो कहा था वो सच है, तुम्हारी 30 सेकंड की पेंटिंग के $10 लाख दे रहा था दुकान में। तुमने 30 सेकंड में इतनी अजीम पेंटिंग बनाई कि उसने $10 लाख दी। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वो फन सीखना है, ताकि मैं भी 30 सेकंड में पेंटिंग बनाऊं और $10 लाख मुझे भी दूं। पाब्लो ने कहा, तारीखी जुमला में सुनो, पाब्लो ने कहा कि लेडी, इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने 30 साल मेहनत की। कितने साल? 30 साल मेहनत की। तब जाकर मुझे ये मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है कि मैं इस तरह की पेंटिंग बनाऊं कि 30 सेकंड में मुझे लाखों डॉलर। इसलिए बच्चों, कामयाबी जो होती है, ये वाकया बताकर मैं हमेशा कहता हूँ, कामयाबी जो होती है उसका दौरानिया बहुत कम होता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने का जो दौरानिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली,
किसी ने इस स्कूल से टॉप कर लिया, स्कूल में बुला कर उसे ट्रॉफी दी जाएगी, 2-4 शहर में प्रोग्राम होंगे, वहां पर ट्रॉफी दी जाएगी, उसकी हौसला अफजाई होगी, अखबार में खबर आएगी, बस 1 महीना 2 महीने तक लोग याद रखेंगे, उसके बाद नहीं याद नहीं। 40-50 साल हो गए रफीउद्दीन से, 50 टॉपर निकले होंगे ना, किसको याद रखते हैं हम लोग? याद उसे रखा जाता है जो अपनी कामयाबी को जारी रखता है। अगर आप अपनी कामयाबी को जारी रखोगे तब आपको याद रखा जाएगा, वरना आपको कोई याद नहीं। इसलिए बच्चों, कामयाबी हासिल करने का दौरानिया कम है, सॉरी कामयाबी हासिल करने का दौरानिया ज्यादा है, लेकिन कामयाबी का दौरानिया बहुत कम है। इसलिए कामयाबी जब आपको हासिल होगी इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह, तो आप लोग जो है उस कामयाबी को जारी रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। एक साथ अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो वो कामयाबी नहीं होती, वो उसका लक होता है। और दुनिया में किसी को भी, चाहे दुनिया में किसी भी इंसान को देख लो आप, किसी भी इंसान को जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, वो एक साथ कामयाब नहीं हुआ। नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो है, बजाज सर ने बताया ना कब आए थे गांधी जी? 1912 में आए थे। कब आए थे? 1912 में। आकर सबसे पहले ये नहीं कि चलो अंग्रेजों को भगाएंगे, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका के फोटो है वो देखो, आपको दिखेगा सूट में, है मेरा सर, सूट में फोटो है, लेकिन हिंदुस्तान के फोटो किसमें? बोलो, धोती और चादर, ऊपर से ऊपर चादर भी नहीं है। क्यों किया? क्योंकि वो दौरा किया, दौरा करने के बाद देखा कि यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग हैं, कोई है ही नहीं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं। अब उस आदमी को फादर ऑफ नेशन बनना था बच्चों, इसलिए सबसे पहले अपना शाहाना लिबास तक करे और धोती में सादा जिंदगी गुजारी। तो 12 में आए थे, 48 में इंतकाल हो गया। 12 से लेकर 48 तक कितने साल हो गए आप देख लो, 36 साल की मेहनत है, तब जाकर नोट पर फोटो आया, वरना ऐसी फोटो नहीं आता है। तब जाकर फादर ऑफ नेशन कहला। जेल गए, लाठियां खाई, बहुत सारी दूसरी परेशानियां आई, अपनों से भी अंग्रेजों से भी। तो इसलिए मुझे कामयाबी स्टेप बाय स्टेप हासिल होती है और उसको वैसे ही हासिल करना चाहिए। कामयाबी के बाद एक साथ जो है आगे जंप नहीं मारना चाहिए। याद रखो, कामयाबी जो हासिल होगी वो आपकी मेहनत से होगी। बगैर मेहनत से अगर कुछ होता है तो वो मौजज़ा या करामत होती है, और मौजज़ा या करामत आम आदमी से नहीं होती है, वो नबियों से या वलियों से होती है। ठीक है, आप लोग जितनी भी यहाँ पर, जैसे सर ने कहा, मैंने भी देखा, थोड़ी सी आपको संजीदगी की जरूरत है। ये जो शरारतें कर रहे हैं आप लोग, ये जो मस्तियां कर रहे हैं, इससे कोई याद नहीं होती। आप लोगों को जो याद रखा जाएगा तो सिर्फ आपका रिजल्ट याद रखा जाएगा। इसलिए अपने रिजल्ट को जो है अच्छे से अच्छा बनाओ बच्चों, इंशाल्लाह आपको जरूर व जरूर कामयाबी हासिल होगी। वक्त है बदल जाओ, एक कॉल है बच्चों, वक्त है बदल जाओ, वरना वक्त आपको बदल देगा। अभी आपके पास ये मौका है, अभी आपके पास ये मौका है, 10वीं में आप अच्छे कामयाब हो गए, देखो आपके लिए अल्लाह ताला राहें बहुत आसान करेगा। लेकिन अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आप लोगों को ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, ये ही बदल देगा। फिर हमको कोई नजर आता है, कोई मैकेनिक बन गया है, कोई गाड़ी पर पोछा मार रहा है, बात थोड़ी सख्त है, लेकिन जो दिख रहे हैं वो शहर में दिखते हैं। हम लोग आते हैं शहर में अपनी गाड़ियों को बनाने के लिए, बाइक को, कार को, पता चला सर आपने मुझे पढ़ाया है। 2 दिन शानदार मार्केट में जो है एक आदमी सर्विस कर रहा था, बोले सर आपने मुझे पढ़ाया है। बजाज सर का भी उन्होंने नाम दिया, गाड़ी की सर्विस कर रहा। और ये नहीं कह रहा काम बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसने पढ़ाई की होती, मेहनत की होती, संजीदगी का मुजाहरा किया होता तो आज वो ये काम है। इसलिए बच्चों अभी वक्त है आपके पास, अपने आप को बदल लो, कोशिश करो, अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है, बगैर टारगेट के कोई भी कभी भी कामयाब नहीं होगा। थॉमस एडिसन को जानते होगे नहीं? थॉमस एडिसन जिसने बल्ब को इजाद किया, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि बल्ब को इजाद किया। 1249 इन्वेंट है उनकी,
कितनी 1249। दुनिया में आज तक कोई भी साइंसदान इतनी सारी चीजों को इजाद करने वाला पैदा नहीं हुआ। थॉमस एडिसन के बारे में आता है कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसने 2-2 मरतबा बनाई है, उसको मालूम भी नहीं ये चीज तो मैंने बना चुका हूं। कितनी ऐसी चीजें तो जो थॉमस एडिसन के बारे में भी आता है कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया खुद की मेहनत से, और ट्रेन के कारशेड में जहाँ ट्रेनों को बनाया जाता है वहां पर उसने मेहनत की और तो उसके बारे में जब उससे पूछा कि आपने इतनी सारी कामयाबियां कैसे हासिल की, क्योंकि जितने भी साइंसदान होते हैं वो 1-2 चीज बनाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने इतनी सारी 1000 से ज्यादा इजादात कैसे की? तो उसने कहा कि जब भी मेरी कोई इजाद मुकम्मल होती है मैं उसकी तरफ देखता नहीं, नई इजाद की तरफ चला जाता, नई इजाद पीछे लगती। इसलिए बच्चों आप लोगों का एक मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ, अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा। मेहनत करो, कोशिश करो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। जहां आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपके पास बेहतरीन असातिज़ा है शहर के, उनसे दरियाफ्त करो, उनसे पूछो, आसान तरीका पूछो किसी भी चीज का, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उसके ऊपर मेहनत करो। अल्लाह ताला ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं होगी, ये कामयाबी आपके माँ बाप की होगी, ये कामयाबी आपके भाई की होगी, आपके बहन की होगी, आपके इदारे की होगी, आपकी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपको अभी जो होने वाला इम्तिहान इसमें कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को। अस्सलाम वालेकुम।